सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत स्वागत। मैक्रो ग्लोबल ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਟੌਪਿਕ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਡਿਟਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਕਲੀ ਤੱਕ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। GIC ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਸਪੋਂਸਰਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ICCRC ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਈ ਔਰ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਲੇ ਕਾਲਜਸ ਓਪਨ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਚਾਹਤੇ ਕਿ ਐਡਿਟਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਾ ਦੌਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਗੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੌਣੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ? रणवीर जी, मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगी कि क्योंकि मैक्रो ग्लोबल इमिग्रेशन सर्विसेज जो है वो एक ICCRC लाइसेंस्ड फर्म है, हमारा अपना ही लाइसेंस है। हम किसी के साथ पैनल पे नहीं हैं, या जो लोग कहते हैं पैनल पे मेंबर है हमारा या कुछ ऐसा, हमारा इन हाउस लाइसेंस है। सो बीइंग ICCRC जब हम प्रैक्टिसेस करते हैं तो बहुत सारे डिफरेंसेस जो हैं वो हम मार्केट में हम फील करते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे कस्टमर हम लोगों को अप्रोच करता है और बहुत ही ड्रामेटिक केसेस हम लोगों के पास आते हैं, और हम बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट भी होती है और बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है कि अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स को जो है वो इस तरीके से मिसगाइड किया गया होता है कि करियर कहीं ना कहीं उनका ब्लॉक हो जाता है। सो बीइंग एन ICCRC बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग जेन्युइनली कस्टमर को देते हैं, और मार्केट में अगर देखा जाए तो उन वैसा नॉलेज ही किसी के पास नहीं है। सो हम डेली बेसिस पे ये देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स के जो हैं वो एडिटेड डॉक्यूमेंट्स हैं या पैकेज सिस्टम करके स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा हरास किया जा रहा है, और एक वीक नॉलेज की वजह से या एक वीक नॉलेज के साथ स्टूडेंट के केस को बिल्कुल वीक स्किल्स के साथ जो है वो इमिग्रेशन के सामने पेश कर दी जाती है उसकी फ़ाइल, और एज अ रिज़ल्ट जो है वो अच्छे पोटेंशियल केसेस का भी जो है वो रेफ्यूज़ल आ जाता है। और रिज़ल्ट यही है कि जो स्टूडेंट है, पेरेंट्स हैं, उसका मॉनिटरी लॉस भी है, उसका मेंटल लॉस भी है, उसका पेशेंस भी जो है वो वीक होती है, और हर तरीके से स्टूडेंट जो है वो हरास होता है। सो मेरा सिर्फ यही एक मैसेज है कि जो भी व्यूअर्स हैं, कस्टमर्स हैं, ये शो देख रहे हैं, वो प्लीज़ कंसंट्रेट करें कि जो अपनी एप्लीकेशन है वो एक ICCRC सर्टिफाइड मेंबर से ही आप प्रोसेस करवाओ। इसमें बहुत बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट बात है। आप अगर किसी भी अनएक्सपर्ट बंदे से, किसी भी स्ट्रीट कॉर्नर साइट खुला जो एजेंट है या किसी भी कंसल्टेंट से जिसे पूरा नॉलेज नहीं है, आप एप्लीकेशन प्रोसेस करवाते हो तो पूरे चांसेस हैं कि आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होगी, और ये बिल्कुल कन्फर्म्ड है कि आपके करियर के लिए भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाएगा। मैम, रिफ्यूज़ होना ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਲੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗਲਤ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ, ਐਡਿਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਐਡਿਟਡ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡਿਟਡ GICਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ, ICCRC ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ? ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣਾ, ਦੋ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਨਤੀਜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿ ਬੈਨ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਔਰ ਬੈਨ ਲਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸਕਸੈਸ ਰੂਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਤੋਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਬੱਚਾ ਖੁਦ GIC ਜਾਂ ਖੁਦ ਫੀਸਾਂ ਕਿਉਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ। ਕਿਉਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ या 10 लाख रुपए तू सारा कुछ कर दे? क्यों स्टूडेंट्स हाले भी अवेयर नहीं है? रणवीर जी, इवन हम लोग भी पर्सनली इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं कि क्यों स्टूडेंट्स और पेरेंट्स अपने साथ ही इस तरीके के जो हैं वो ब्लंडर्स क्रिएट करवा लेते हैं। ये मैं आज तक ये चीज़ नहीं पर्सनली समझ पाई कि स्टूडेंट्स क्यों पैकेज सिस्टम पे जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, जबकि बहुत ही क्लियर सिचुएशन है कि आप जब पैकेज सिस्टम में किसी के साथ इंडल्ज होते हो तो पैकेज ऑफर करने वाला कहीं ना कहीं 2, 2.5, 3 लाख रुपए का बेनिफिट मार्जिन लेके ज़रूर उस चीज़ को लेके चलता है। और मेरी हमेशा यही एडवाइस रहती है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा स्मार्ट होने की ज़रूरत है। सक्सैस ते मार्जिन 2.5 की जगह 5 ले ले, कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे ते बैन लवा के मार्जिन भी लै गया, दुकान बंद करके भज गया, एडिटेड डॉक्यूमेंट
बच्चे दियां 3 पीढ़ियां कनाडा नहीं जा सकती। एग्जैक्टली ये फंडा एक्चुअली ये है, इसके पीछे एजेंडा कंसल्टेंट्स का ये है, वो स्टूडेंट को एक ये स्टेटमेंट दे के अट्रैक्ट कर लेते हैं कि आपका पैकेज सिस्टम है और इसके बाद आपने कुछ भी नहीं, कोई वर्कआउट नहीं करना, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी, और A to Z जो आपकी सर्विसेज है वो हम आपको अपने ऑफिस से ही प्रोवाइड करके देंगे। लेकिन समझने वाली बात ये है, स्टूडेंट को ज़रूर इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि आपको अपनी एप्लीकेशन को खुद प्रोसेस करना है। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हो, आप काउंसलिंग लेते हो, आप अपना कोर्स कॉलेज सेलेक्ट करते हो, आपकी ऑफर लेटर आती है, देन यू पे द फीस, देन यू पे द GIC। सो वाई टू रिलाई ऑन अ पर्सन जिसका आपको एक ऑफिस के अलावा उसकी बैकग्राउंड के बारे में आप कुछ नहीं जानते, ना उसके पास कोई लाइसेंस है, ना कोई आइडेंटिटी है। सो आप ऐसे बंदे के साथ पैकेज सिस्टम में इंडल्ज कैसे हो सकते हो? एंड मोर ओवर सबसे बड़ी बात यह है कि दिस इज़ अ वीज़ा एप्लीकेशन। आप एक फॉरेन एजुकेशन के लिए अपनी एप्लीकेशन लगा रहे हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें किसी तरीके की कोई डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का कोई फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाए या उस पर बैन आ जाए, और एडिशनली आपका मॉनिटरी लॉस भी हो। सो ये जो अट्रैक्शंस हैं या जो कमिटमेंट्स हैं कि आपको एक ही टेबल पे A to Z सर्विसेज मिलेंगी, आपको बार बार विजिट करने की नहीं ज़रूरत, आप घर बैठ के आराम कीजिए, हम आपको वीज़ा लेके हाथ में देंगे, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। एंड मुझे लगता है कि थोड़ा स्मार्टली पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी कैलकुलेशंस में आना चाहिए। यू मस्ट सिट ऑन द टेबल एंड यू मस्ट आस्क कि आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, आपका फाइल चार्जेस वो आपसे कितने चार्ज कर रहा है, कॉलेज की फ़ीस कितनी है, GIC का क्या फॉर्मेट है, आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस कितनी, एंड वाई नॉट यू आर पेइंग दैट फीस। क्यों कंसल्टेंट ही आपकी वो फीस पे कर रहा है? बहुत सारे रीसेंट केसेस हमने ऐसे देखे हैं जिसमें स्टूडेंट ब्लाइंडली जो है वो डिमांड ड्राफ्ट बना के कंसल्टेंट को हैंड ओवर कर देता है। सो आई फील वेरी सरप्राइज्ड कि कहीं तो हम मे बी 100-200 के लिए भी हम एक बार्गेनिंग में आ जाते हैं और कहीं हम लैक्स में ब्लाइंडली DDs बना के हैंड ओवर कर देते हैं, पैकेज सिस्टम में इंडल्ज हो जाते हैं। सो मुझे लगता है ये सब चीज़ों को पीछे छोड़ना चाहिए और स्मार्टली एक्ट करना चाहिए। एंड आपका राइट है जब भी आप किसी ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करवा रहे हो, तो दिस इज़ योर राइट टू सी द डॉक्यूमेंटेशन, टू गेट टू नो द प्रोसीजर कि क्या प्रोसीजर वो फॉलो कर रहे हैं, या आपके कोई भी यूज़र IDs हैं, पासवर्ड्स हैं, चाहे वो कॉलेज पोर्टल के हैं, चाहे वो आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डालते हैं उसके आपके यूज़र ID पासवर्ड्स हैं, या आपके GIC अकाउंट के यूज़र ID पासवर्ड्स हैं, वो आपका राइट है और आपको अटेंटिवली उन चीज़ों की डिमांड जो है वो अपने कंसल्टेंट से करनी चाहिए। एंड दीज स्टेप्स आप जो हैं, ये जो स्टेप्स हैं अगर आप लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपके जो साथ जो फ्रॉड होता है उससे आप बच सकते हो। सत श्री अकाल जी, मैं देव फ्रॉड, तुसीं देख रहे हो इंटरनेशनल प्रोग्राम देश प्रदेश लाइव। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੱਬ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦਾ? ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾ 'ਤੇ ਜੱਜ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੈਕੇਜ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ, GIC ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਫੀਸ ਭਰਨ ਵੇਲੇ 2-2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਲਰ ਖਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬੱਚਾ ਅਵੇਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਫੀਸਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, 1000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ 5-7 ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਬਚੋ। ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ 22 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਜਾਂ 32 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਦਰਜਨ 28 'ਚ ਜਾਂ 30 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਫਰੌਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਨ ਵੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 5-7 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਸਪੌਂਸਰਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ 28 ਤਰੀਕ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ प्रोसेस ਰਿਹਾ सर? रणवीर जी, मैं तो यही कहूँगी कि इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल कैटेगरी और हम काफ़ी टाइम से इस कैटेगरी को लेके अलर्ट्स दे रहे थे थ्रू दिस प्रोग्राम ऑल्सो, बट रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा रहा है और ड्रामेटिक भी रहा है साथ के साथ, क्योंकि 3 दिन में ही 28 जनवरी से ये शुरू हुआ था प्रोग्राम और विद इन 3 डेज़ उनका जो है वो 20,000 एप्लीकेशंस का कोटा कंप्लीट हो गया। सो जो लोगों का एप्लीकेशंस प्रोसेस हो गए, दोज
पीपल आर लकी, और जो रह गए हैं वो नेक्स्ट ईयर के लिए वेट कर सकते हैं। जी, ओपन वर्क परमिट काफ़ी ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ? रणवीर जी, ओपन वर्क परमिट जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि बहुत ही हॉट कैटेगरी है इस टाइम पंजाब में स्पेसिफिकली, और बहुत सक्सेसफुल भी है कहीं ना कहीं, लेकिन इसकी सक्सेस के पीछे काफ़ी सारे जो हैं वो ब्लंडर्स भी हैं, कुछ मिसगाइडेंस भी है। सो मैं एक बार फिर से ये चीज़ रिपीट करती हूँ कि जब आप अपने ओपन वर्क परमिट कैटेगरी के लिए किसी भी कंसल्टेंट को अप्रोच करते हैं तो बहुत ज़्यादा ये एक चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि आप अपने आप को प्रॉपरली असेस करवाएं, और मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी इस इतनी सेंसिटिव एप्लीकेशन के लिए किसी ICCRC मेंबर को ही अप्रोच करें, क्योंकि जो वीक नॉलेज वाले या कम नॉलेज वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो आपकी एप्लीकेशंस के साथ जो है वो ओपनली प्ले करते हैं। और प्लीज़ इस बात पे ध्यान दें कि ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट स्टेज पे ओपन वर्क परमिट के लिए ही क्वालिफाई करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कैलकुलेट किए जाते हैं। एक तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी डिपेंडेंट स्पाउस कनाडा में पढ़ रही है या पढ़ रहा है वो एक सेमेस्टर कंप्लीट कर चुका है या नहीं। सेकेंड थिंग इज़ उसका जो कॉलेज है वो एक स्टैंडर्ड का कॉलेज है जिसके पास पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है या नहीं है। इसके अलावा आपकी जो मैरिज का जो स्टेटस है वो देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को इस तरीके की भी गाइडेंस दी जाती है कि एक बार लड़की को वीज़ा मिल जाने दो, उसके बाद आप मैरिज करो और उसके बाद आप ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन लगाओ। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। आई वुड से कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मैरिज को जेन्युइनली हाई कमीशन के सामने रिप्रेजेंट करना, और हाई कमीशन को उनको एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए, बिलीव आना चाहिए कि आपकी मैरिज जो है वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज नहीं है, एक जेन्युइन मैरिज है। उसके लिए मेरी क्वेश्चन है बहुत ਵੱਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ? ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈਨੂਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, वो कितने कितने अपडेट करें अपने आप को कि मेरी मैरिज हो गई है, वीज़े तो बाद हाले गया नहीं इंडिया। तो देखिए, वीज़ा मिलने के बाद अगर आप मैरिज करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि आप हाई कमीशन को अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि कोई आपके पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंटेशन करने वाली नहीं है, आप ऑलरेडी वीज़ा लेके बैठ चुके हो। सो एडवाइजेबल हमेशा ये रहता है कि आप अपनी मैरिज को वीज़ा से पहले प्लान करें, या अगर आपको वीज़ा मिलने के बाद भी कोई ऑप्शन ऐसा मिल रहा है, आपके पेरेंट्स भी विलिंग हैं आपको मैरिज करवा के कनाडा भेजने के लिए, तो एडवाइजेबल ये है कि जो लड़की है वो एक बार कनाडा एंट्री ले, अपना कॉलेज अटेंड करे, एक अपना 4 महीने का सेमेस्टर कंप्लीट करके फिर आप इंडिया वापस आओ और फिर मैरिज करो। सो वो एक जेन्युइन रूट हो जाता है। जब आप इमीडिएटली मैरिज के बाद, अब वीज़ा के बाद आप मैरिज करते हो और उसके बाद जाके आप अपना कनाडा फ्लाई करते हो और कॉलेज ज्वाइन करते हो, तो आपकी इंटेंशंस जेन्युइन होते हुए भी कहीं ना कहीं गलत रिप्रेजेंट हो जाती हैं। सो वो यही इंप्रेशन देती हैं कि मे बी कोई एक ऐसी पार्टी थी जो यही देख रही थी कि वीज़ा होल्डर लड़की मिलनी चाहिए और फिर मैरिज करके आप जाते हो। सो वो आपके वीज़ा के लिए या आपके डिपेंडेंट स्पाउस ने जब जाना है वर्क परमिट लेके या विजिटर वीज़ा पे भी जाना है तो उसकी एप्लीकेशन पे क्वेश्चन खड़ा कर देते हैं। सो ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਡ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇ ਐਮਬੈਸੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਸਪਾਊਸ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਲ ਮਿਸਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। 3 ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਕੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬੈਨ ਲਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ, ਦੂਜਾ ਰੀਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਰਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਧ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖੇਡ ਜੋ ਤੂੰ ਖੇਡਣਾ। एक अज का साडा मुद्दा, इस चीज़ तो अवेयर होने की कोशिश करो। कुछ तो मेरे ख्याल रीसेंट वीज़ाज आए भी ने जी जो ओपन वर्क परमिट देने। जी हाँ जी, हमारे रीसेंट वीज़ाज आए हैं और बहुत ही सक्सेसफुल वीज़ाज रहे हैं। ये ऐसे ही कैंडिडेट्स थे जो बहुत सारी विंडो शॉपिंग करके आए थे, जगह जगह जाके एडवाइस लेके आए थे और अल्टीमेटली वो
जब उन्होंने हमारे से कोटेशंस ली या डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ली तो उनने ये रियलाइज़ हुआ कि शायद वो गलत गाइडेंस कहीं ना कहीं से ले रहे थे। सो ऐसे भी केसेस हम लोगों ने फेस किए हैं, हम डेली बेसिस पे फेस करते हैं, जो ओपन वर्क परमिट के लिए कई बार क्वालिफाई नहीं करते। सो ऐसे कैंडिडेट्स को विजिटर वीज़ा पे भी मोल्ड किया जाता है। सो अगेन आई वुड से कि आप पर्सनली आओ, आप आके एक हम लोगों के साथ टेबल पे बैठ के डिस्कस करो। हम आपको 15-20 मिनट्स, आधे घंटे की काउंसलिंग, पूरी सेटिस्फैक्ट्री काउंसलिंग हम आपको देते हैं, आपकी प्रोफाइल को डीपली चेक करके, आपका एज वेल एज आपकी स्पाउस का प्रोफाइल। सो अकॉर्डिंगली वी कैन लेट यू नो कि आप विजिटर वीज़ा के लिए क्वालिफाई करते हैं या ओपन वर्क परमिट के लिए। एंड बहुत ही सक्सेसफुल रिजल्ट्स हमारे रहे हैं। सो फॉर दैट श्योर आपको पर्सनली ऑफिस में विजिट। ਸੋ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਦਿਖਾਓਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਐਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖੇ ਕਿਵੇਂ ਕਮਿਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੱਗੇਗਾ? ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੋਂ, ICCRC ਮੈਂਬਰ, ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 5-10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਈ ਔਰ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਸ ਖਾਲੀ ਨੇ। Hi, my name is Surinder Singh, and today I got my open work visa as my wife is studying in Canada. So I applied from Macro Global. They are very helpful, and I recommend you all guys to please visit there and get guidance from them. Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ। ਮੇਰਾ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੀਮਾ ਮੈਮ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੈਮ ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਈ ਔਰ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ, ਕੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਮਈ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ जी रणवीर जी, प्रेजेंटली जो एक बहुत ही हाईलाइटेड कॉलेज है वो है कॉनेस्टोगा कॉलेज, और ये ओंटारियो प्रोविंस में लोकेटेड है। दून किचनर में जो है वो इसका कैंपस है, और बहुत ही अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के साथ इसकी जो सर्विसेज हैं, फैसिलिटीज़ हैं। एंड लकी बात ये है कि मई 2019 के लिए इनका एक इमीडिएट अलर्ट है, जो कल सुबह मॉर्निंग ही उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स ओपन किए हैं। दीज आर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं सितंबर को टारगेट कर रहे हैं, अभी तक एडमिशन्स या ऑफर्स जिनके नहीं आए हैं, वो मई 19 की भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। सो इसमें हमारे पास एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो हॉस्पिटैलिटी या होटल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। इट्स अ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। इसके लिए काइंडली आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। बी इन्फॉर्म्ड कि 6.5 ओवरऑल 6 इन ईच की इस कॉलेज की जो है वो रिक्वायरमेंट है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। देन जितने भी स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर डिग्रीज़ वाले हैं, जैसे बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या BSc IT, इस तरीके के जो कोर्सेज स्टूडेंट्स ने किए हुए हैं, उनके लिए एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स अभी भी ओपन है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जो ओपन है। एंड स्टूडेंट्स जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं, ग्रेड 12 वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी एक अंडर ग्रेजुएट बिजनेस डिप्लोमा जो है वो अभी भी कॉनेस्टोगा कॉलेज में ओपन है। इसके अलावा हमारे पास एल्गोमा यूनिवर्सिटी या यॉर्क यूनिवर्सिटी में कुछ कोर्सेज हैं जो ओपन है मई इनटेक के लिए, और अदरवाइज़ जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को टारगेट कर रहे हैं सितंबर 2019 के लिए ही, क्योंकि एडमिशन्स का बहुत ज़्यादा रश है। सो बेटर होगा कि आप विंडो शॉपिंग पे बिलीव नहीं करो, आप किसी की भी बात से अट्रैक्ट नहीं हो, और आप एक ICCRC कंसल्टेंट को अप्रोच करो ताकि आपको सही गाइडेंस के साथ आपकी एडमिशन को, ऑफर लेटर को प्रोसेस किया जा सके। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2019 ਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਮਈ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, बस ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਹੁਣ ਮਾर्च अप्रैल ਚ पेपर देंगे? मिलेगा उन्होंने सितंबर? जी हाँ जी, मिल सकता है, लेकिन उसकी पूरी पॉसिबिलिटीज़ भी नहीं है, मैं ये कहूँगी, क्योंकि आज की डेट में कनाडा के एडमिशन्स 1 साल एडवांस हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं आपके पास ऑप्शन होगा, ज़रूर हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनको आप कंसनट्रेट करो, आप कोशिश करो कि आपके जो मार्क्स हैं वो कोर सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें 60-65 प्लस आपके
मार्क्स रहें, ताकि आपकी ओवरऑल परसेंटेज अच्छी रहे और आप हर एक कॉलेज के लिए क्वालिफाई करें। इसके अलावा इमीडिएटली आफ्टर एग्ज़ाम्स यू प्रिपेयर फॉर योर आइल्स एग्ज़ाम। आप इमीडिएटली अपने आइल्स एग्ज़ाम का तैयारी करो, ताकि किसी भी तरीके से अगर सितंबर के कुछ कोर्सेज ओपन है तो आप एकोमोडेट हो पाओ। सो दिस थैंक यू शिवानी जी, बहुत ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ। ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਾਂ ਤਾਂ 20-30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚੋਗੇ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਵੀ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ ਸਪੌਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਪਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਓਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟਿਪਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੰਟੀ ਵੱਜੇਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।